हे दोस्तों, उनमें हाल ही में इस सवाल पर काफी चर्चा हुई है। क्या नरक अनंत काल की पीड़ा है या उसका अंत भी होता है? The more I read the scripture, the more I truly do not believe that hell's eternal. No, it's not. You're gone eternally. Yeah. You disappear. You're burned up. A lot But of why people don't would agree with us. Why would a loving God torture you forever for a lifetime that only expanded 7 decades? It's not torturing for a billion years, a trillion years. And again, I'm so new at reading the gospel, so forgive me, God, if I speak against you, but it just doesn't seem like the God that I'm reading. The idea that God will torment a person in an eternity of hell for a lifetime of sin is completely foreign to Scripture. What I say is that hell is not eternal life in the lake of fire. That's what I believe. I believe that people are going to perish in the lake of fire, not receive the gift of eternal life there. So I will say, hey, the wages of sin is death, and then someone will say, no, you're wrong. Hell is eternal punishment. I believe the eternal torture stream became the norm because of colonization. It was used as a tool of fear to convert colonized people, and we need to correct that. I used to hold the position of conscious eternal torment because that's just what I was taught by people that I love and trust. I've learned that there are other positions fits with the Old Testament picture of the fate of the wicked, which is to be destroyed, it is to die, and it is to perish, not live forever in an eternal barbecue. And a very robust argument can be made for conditionalism or annihilationism. It fits the character of God, in my understanding, more than the conscious eternal torment position, because it brings in the mercy of God together with the justice of God. It doesn't leave judgment out. It is just. So that's where I am today. And this is such great relief to someone like me. I don't want to believe in conscious eternal torment for anybody, no matter how wicked they are. If the scriptures taught it, I would believe it because this is the word of God. But if it doesn't teach that, we are severely misrepresenting the character of God. If conscious eternal torment is not a thing, that's actually a great relief. I would have joy in correcting somebody who says that the reason that they're not a Christian is because of this merciless God who tortures people forever. And I could say that's not what the Bible teaches. Good news. Still not good. You don't want to go there, but there is mercy even in his judgment. जैसा कि आप देख सकते हैं, इस विषय पर केवल पिछले कुछ सप्ताहों से नहीं, बल्कि महीनों, वर्षों और वास्तव में पीढ़ी दर पीढ़ी चर्चा होती रही है। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम केवल लोगों की बातों पर नहीं, बल्कि बाइबल वास्तव में क्या कहती है, इस पर ध्यान दें। अब यहाँ समस्या है, बाइबल हमेशा एक जैसी रहती है, लेकिन बाइबल की लोगों की व्याख्या अलग-अलग होती है। इसलिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि बाइबल वास्तव में नरक के बारे में क्या कहती है। और फिर मैं इसे आप पर छोड़ दूंगा कि आप मुझे बताएं कि यह क्या कहता है। इसलिए आइए हम बाइबल को बोलने दें और स्वयं की व्याख्या करने दें। यीशु ने मत्ती 24 वाक्य 35 में कहते हैं, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरे वचन कभी ना टलेंगे। सबसे पहले हमें इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। जब बाइबल नरक के बारे में बात करती है तो यह कोई रूपक नहीं है, यह कोई विचार या अवधारणा नहीं है, यह एक वास्तविक स्थान है। यीशु ने स्वर्ग की तुलना में नरक के बारे में अधिक बात की। वास्तव में पवित्र शास्त्र में किसी और की तुलना में यीशु ने इसके बारे में अधिक बात की। इसलिए जब बाइबल नरक के बारे में बात करती है तो वह इसे न केवल अलगाव और न्याय के स्थान के रूप में, बल्कि दंड के स्थान के रूप में भी वर्णित करती है। उदाहरण के लिए यीशु ने मत्ती अध्याय 25 वाक्य 46 में यह स्पष्ट रूप से कहा था, और ये अनंत दंड भोगने के लिए चले जाएंगे, अस्थायी नहीं, अनंत, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। अब याद रखें, बाइबल लिखी गई है पुराना नियम इब्रानी में, नया नियम यूनानी में। इसलिए यहाँ यूनानी शब्द क्या कहता है? अनंत शब्द के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यूनानी शब्द एओनोइस है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अनंत काल। यहाँ एक दिलचस्प बात है कि यीशु इसी शब्द का प्रयोग केवल नरक के लिए ही नहीं, बल्कि स्वर्ग के लिए भी करते हैं। इसलिए यदि स्वर्ग हमेशा हमेशा के लिए है, अर्थात अनंत है, तो नरक भी वैसा ही है। यह शब्द का उपयोग करता है यहाँ विशेष रूप से नरक नहीं, बल्कि दंड, कुछ वाक्य में अंधकार भी। लेकिन फिर हम एक दिलचस्प शब्द भी देखते हैं, विनाश। इसलिए क्या विनाश का अर्थ है कि यह इसे नष्ट कर देता है और फिर इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है? कुछ लोग ऐसा ही मानते हैं। उदाहरण के लिए यीशु ने मत्ती 10 वाक्य 28 में कहते हैं, और उनसे मत डरो जो शरीर को मार डालते हैं पर आत्मा को नहीं मार सकते, बल्कि उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि कुछ लोग इस विषय में थोड़े भ्रमित क्यों हो सकते हैं, क्योंकि एक तरफ यीशु कहते हैं कि यह अनंत दंड है, दूसरी ओर यह कहता है कि वह नरक में शरीर और आत्मा को नष्ट कर सकता है। इसलिए कुछ लोग सोचते हैं कि यह केवल अस्थायी है।
यह केवल विनाश ही नहीं बल्कि नाश की भी बात करता है। यही कारण है कि लोग सोचते हैं कि उनका एक निश्चित समय के लिए न्याय किया जाएगा, दंडित किया जाएगा और फिर उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। धर्मशास्त्र में हम इस दृष्टिकोण को एनहिलेशनिज्म या सशर्त अमरता कहते हैं। अब जब आप बाइबल के कुछ ऐसे वाक्य पढ़ते हैं जो एक दूसरे के विपरीत लगते हैं, तो आपको क्या करने की जरूरत है? अच्छा, इसे हमेशा याद रखें, आपको बाइबल को ही बाइबल की व्याख्या करने देनी चाहिए। बाइबल व्याख्या शास्त्र कभी कभी संदर्भ, मूल इब्रानी और यूनानी शब्दों को देखने के अलावा यह भी बताएगा कि उस शब्द का अर्थ क्या है। इसलिए यहां एक उदाहरण वह वचन है जिसका यीशु ने उपयोग किया, विनाश। अब हमें यह परखना होगा कि विनाश शब्द का वास्तव में क्या अर्थ है। क्या यीशु वास्तव में डे नाश से वही अर्थ लेते हैं जो हम अंग्रेजी भाषा में समझते हैं, पूर्ण समाप्ति? फिर इस शब्द के बारे में संदर्भ क्या कहता है? स्वयं यीशु इस नाश को कैसे देखते हैं? क्योंकि वे कभी कभी मृत्यु कहते हैं पर उसका अर्थ अनंत मृत्यु होता है ना? इसलिए यह मृत्यु और समाप्ति नहीं है कि बस सब कुछ खत्म हो जाए। या वह उपयोग करते हैं, यदि कोई मर जाता है तो विशेष रूप से वह यह नहीं कहते कि वह मर गया, बल्कि वह सोता है। यह एक अभिव्यक्ति का तरीका है। इसलिए प्रश्न यह है, क्या यीशु हमें बताते हैं कि विनाश कैसा दिखता है? हाँ, बताते हैं। नरक के विषय में मरकुस 9 वाक्य 48 में यीशु नरक का वर्णन एक ऐसी जगह के रूप में करते हैं जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। इसलिए यहां हम पहले ही देख सकते हैं कि जो आग बुझती नहीं है वह कभी खत्म नहीं होती, इसलिए यह हमेशा हमेशा के लिए जारी रहती है। वह कीड़ा जो मरता नहीं है उसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। यीशु नरक को इसी तरह देखते हैं। इसलिए जब यीशु नरक की बात करते हैं तो वह ऐसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं जो निरंतर है, जो कभी समाप्त नहीं होती या अनंत है। अब जब हम बाइबल के अन्य वाक्य को देखते हैं, जब यह नरक की बात करता है तो वह क्या कहता है? उदाहरण के लिए प्रकाशित वाक्य की किताब यह नरक की व्याख्या कैसे करती है? प्रकाशित पुस्तक 14 अध्याय वाक्य 11 कहता है, और उनकी पीड़ा का धुआं हमेशा हमेशा के लिए ऊपर उठता रहता है और उन्हें दिन रात कोई आराम नहीं मिलता, उन पशु और उसकी मूर्ति की आराधना करने वालों को और जो कोई उसके नाम की छाप लेता है। इसीलिए यहां इस्तेमाल की गई भाषा अनंत है, हमेशा हमेशा के लिए यह अनंत है। यहां यह अस्थाई नहीं कहता, यह यहां नहीं कहता कि यह रुक जाएगा, और यह वाक्यांश हमेशा हमेशा के लिए उन सबसे मजबूत अभिव्यक्तियों में से एक है जो हमें बाइबल में मिल सकती हैं। यह हमेशा हमेशा के लिए है, यह अनंत है। अब यहां असली मुद्दा है, कई पादरी या मसीही सोचते हैं, अच्छा परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकते। निश्चित रूप से वह अपने स्वभाव के कारण ऐसा नहीं कर सकते, है ना? यही समस्या है। फिर वे बाइबल के पास जाते हैं और फिर वे इसकी व्याख्या उस तरह से करने की कोशिश करते हैं जैसा वे परमेश्वर के बारे में महसूस करते हैं, न कि वह जो बाइबल कहती है। इसलिए वे बाइबल की व्याख्या करने की कोशिश कर रहे हैं। वे जो लिखा है उसके बजाय वह मानना चाहते हैं जो वे चाहते हैं। परमेश्वर बार बार स्पष्ट कहता है, नरक अनंत है। यह कभी नहीं कहता कि नरक केवल अस्थाई है और फिर लोगों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यह कभी ऐसा नहीं कहता। यीशु ने मत्ती 25 वाक्य 46 में कहा, और ये अनंत दंड भोगने के लिए चले जाएंगे। मैं इसे 100 बार पढ़ सकता हूं। अनंत दंड, अनंत दंड, अनंत दंड। यह अस्थाई नहीं कहता, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं और मैं किसी चीज की व्याख्या नहीं कर रहा हूं। ये वही है जो वचन स्वयं स्पष्ट रूप से कहता है, अनंत दंड। और जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं उसके बाद यह कहता है अनंत जीवन में। अब बाइबल इस बारे में भी बात करती है कि जब सहस्राब्दी राज्य के अंत में जब परमेश्वर मृत्यु और अधोलोक को लेकर उसे आग की झील में डाल देते हैं, तब यह भी कहता है कि यह दूसरी मृत्यु है, आग की झील। वह बाद में आता है ना? लेकिन क्योंकि यह मृत्यु शब्द का उपयोग करता है, बहुत से लोग सोचते हैं कि अब यह दूसरी मृत्यु है, यह अंतिम होगी, इसलिए लोग भी मरने वाले हैं, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन फिर से बाइबल ऐसा नहीं कहती। प्रकाशित वाक्य 21 वाक्य 8, पापी नरक में जाएंगे, उनका हिस्सा उस झील में होगा जो आग और गंधक से जलती है, जो दूसरी मृत्यु है। इसलिए जब हम प्रकाशित वाक्य में अंत समय के इस वर्णन को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अध्याय 20-21 यहां मृत्यु के बारे में बात करता है, और अधोलोक को आग की झील में डाल दिया जाएगा, लेकिन दुष्टों को इसमें डाल दिया जाएगा, इस स्थान में जिसे दूसरी मृत्यु कहा जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि वे मर जाएंगे और उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अनंत मृत्यु या विनाश नाम की कोई चीज होती है जब आप प्रभु की उपस्थिति से दूर होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु स्वयं जीवन है, इसलिए आप अनंत मृत्यु में चले जाते हैं। उनमें नहीं, उनमें कोई मौका नहीं है, क्योंकि आपने जीवन को स्वीकार नहीं किया, आपने मृत्यु को स्वीकार किया। इसलिए आप हमेशा हमेशा के लिए प्रभु की उपस्थिति से दूर रहेंगे। जैसा कि हम दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 के वाक्य 9 में पढ़ते हैं, वे अनंत विनाश का दंड पूरी तरह से भोगेंगे। अनंत प्रभु की उपस्थिति से दूर। क्या आप समझ रहे हैं?
यहाँ पृथ्वी पर जब कोई चीज नष्ट हो जाती है तो वह चली जाती है ना? उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, आप उसे जला सकते हैं। लेकिन बाइबल अनंत विनाश, अनंत मृत्यु की भाषा का उपयोग करती है। दूसरी मृत्यु ये तब होता है जब आप प्रभु की उपस्थिति से दूर होते हैं, और तो आपको दंडित किया जाएगा, है कि नहीं? इसलिए बस अनंत रूप से नष्ट होना वही दूसरी मृत्यु है। उनमें जीवन के लिए अब और कोई मौका नहीं है। मुझे इसे इस तरह समझाने दें। दोस्तों, आज आप सबके साथ यहाँ होना बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे एक छोटी सी मदद चाहिए, क्योंकि मुझे एहसास हुआ है कि आप में से लगभग 70 से 80% लोग ये कभी नहीं जान पाते कि मैं हर हफ्ते नए वीडियो कब अपलोड करता हूँ, क्योंकि आपने हमारे चैनल्स पर नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाई है। अगर हमारे वीडियो आपको प्रभु में बढ़ने में मदद करते हैं तो क्यों ना सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और फिर ऑल यानी ALL पर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया कंटेंट अपलोड करें आपको हमारे सभी वीडियो की सूचना मिल सके। इसी तरह आपको पता चलेगा कि नया वीडियो कब आया है और आप अब कुछ भी मिस नहीं करेंगे। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। मेरी टीम और मैं, हम सच में इसकी सराहना करते हैं। और जब आप यहाँ हैं तो क्यों ना हमें एक थम्स अप दें और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर हर जगह प्रचार करें, क्योंकि इससे YouTube को लगेगा कि अरे ये एक अच्छा वीडियो है, इसे शेयर किया जा रहा है, इसलिए चलिए इसे और ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं। इसी तरह आप हमारी मदद कर सकते हैं सुसमाचार को फैलाने में और मसीह के लिए और अधिक जीवन बचाने में। अब आइए आज के संदेश पर वापस चलते हैं। पृथ्वी पर जब कुछ नष्ट होता है तो वह खत्म हो जाता है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। आप उसे जलाकर राख कर सकते हैं, लेकिन बाइबल अनंत विनाश, अनंत मृत्यु, दूसरी मृत्यु की भाषा का उपयोग करती है। यह तब होता है जब आप प्रभु की उपस्थिति से दूर होते हैं और आपको दंडित किया जाएगा, ठीक है? इसलिए यह अनंत रूप से नष्ट होना ही दूसरी मृत्यु है। उनमें जीवन के लिए अब और कोई मौका नहीं है। मुझे इसे इस तरह समझाने दें। परमेश्वर जीवन है, उनके बिना उनमें जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आज भी यहाँ दुनिया में रहने वाले लोग, शायद आप देख रहे हैं, और आप एक सच्चे मसीही नहीं हैं। आप पहले से ही जीवन के बिना हैं, सच्चे आत्मिक जीवन के बिना। इस अस्थाई दुनिया में आपको जीवन मिला है ताकि आप जीवन या अनंत मृत्यु को चुन सकें। आप अपना निर्णय लेते हैं और फिर हमेशा के लिए उस निर्णय में प्रवेश करते हैं। आप अनंत जीवन में जाते हैं या अनंत मृत्यु में। आप आत्मिक रूप से मृत हैं क्योंकि आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता नहीं माना है। उसने आपको पवित्र आत्मा नहीं दिया है। पवित्र शास्त्र स्वाभाविक मनुष्य और आत्मिक मनुष्य के बारे में बात करता है। इसलिए स्वाभाविक मनुष्य के पास वास्तव में अनंत जीवन नहीं होता है। हम इसे पृथ्वी पर पाते हैं जब आप यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता मानते हैं। वह आपको धर्मी ठहराता है और छुटकारे तक पवित्र आत्मा की मुहर देता है। इसलिए आप इसे दान के रूप में पाते हैं। अब आप आत्मिक रूप से जीवित हैं। अब आप आत्मिक सच्चाइयों को समझ सकते हैं, क्योंकि स्वाभाविक मनुष्य परमेश्वर की बातें नहीं समझता, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और आप केवल आत्मा से ही इन्हें समझ सकते हैं। इसलिए पृथ्वी पर आपकी मृत्यु होने पर आप नहीं मरते, बस आपका शरीर मरता है। वो पहली मृत्यु है, ठीक है? अंतिम संस्कार में आप अलविदा कहने जाते हैं, पर वे वहां नहीं होते। वे आगे बढ़ चुके हैं। उनके आत्मा स्वर्ग में मसीह के साथ हैं, जैसे क्रूस पर यीशु के पास वाला आदमी। पौलुस के अनुसार शरीर से अलग होना प्रभु के साथ होना है। यदि आप सच्चे नई सृष्टि मसीही हैं, यदि आप नहीं हैं तो आप अधोलोक में जाते हैं। बाद में सहस्राब्दी राज्य के बाद मृत्यु और अधोलोक को आग की झील में डाल दिया जाएगा। फिर आप दूसरी मृत्यु में प्रवेश करते हैं। वह है अनंत विनाश, अनंत मृत्यु, अनंत दंड। बाइबल इसे अस्तित्वहीनता नहीं कहती। बाइबल में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि वे मनुष्य अब अस्तित्व में नहीं रहेंगे। वे कहीं भी नहीं जा पाएंगे, लेकिन वे नरक में ही रहना जारी रखेंगे, उनके प्राण हमेशा के लिए मृत लोगों के रूप में, क्योंकि उनके पास स्वयं जीवन यानी यीशु मसीह नहीं है। अब यीशु ने लूका 16 वाक्य 22 में भी कहा, वह धनवान भी मर गया और गाड़ा गया, और अधोलोक में पीड़ा में पड़े हुए उसने अपनी आंखें उठाईं। अब मैं आपसे यह क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो सिखाते हैं, यहाँ तक कि कुछ पादरी भी, कि उनमें कोई सचेत पीड़ा नहीं होती जब आप मरते हैं, यदि आप नरक जाते हैं। मान लीजिए यह अधोलोक है। असली नरक वह अनंत नरक है जिसे परमेश्वर न्याय के बाद बनाएंगे। जब वे नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाएंगे, तब मृत्यु और अधोलोक को आग की झील में डाल देंगे। इसलिए मैं उसी आग की झील की बात कर रहा हूं। अगर आप मरते हैं तो कई मानते हैं कि आप बस प्राण नींद में चले जाते हैं, पर बाइबल ये नहीं कहती। बेशक मरना शरीर से अनुपस्थित होकर मसीह के साथ होना है। बाइबल बार बार घोषित करती है कि यदि आप मरते हैं तो आप अनंत पीड़ा में जाएंगे।
इसीलिए यीशु के द्वारा बताए गए इस उदाहरण के साथ शुरुआत से ही मौजूद वास्तविक शारीरिक सचेत पीड़ा है, और यह मृत्यु के बाद न्याय से पहले है। और मुझे बस ठंड लग रही है, मैं बस एक जैकेट ले आता हूं, इसलिए बहुत बेहतर। आप जानते हैं, यह मुझे एक और बात पर ले आता है। यहां इस दुनिया में इन विशिष्ट परिस्थितियों के साथ इस दुनिया के नियम, उदाहरण के लिए गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है और तापमान के साथ प्रकृति कैसे काम करती है। यदि आपको ठंड लगती है तो आप कम से कम गर्म कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन अगर आपको गर्मी लगती है, मेरा मतलब है मैं दक्षिण अफ्रीका से हूं, वहां कुछ अत्यधिक गर्म स्थान हैं, जैसे अपिंगटन जहां मेरे पिता पले बड़े, मेरी माँ किम्बरली, डगलस क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों में। लेकिन नरक में ऐसी लपटें होंगी जो समाप्त नहीं होंगी, वे जलती रहेंगी। आप वहां परमेश्वर के बिना हैं, उनमें पानी नहीं है। नरक का अनुभव करने वालों की गवाहियां देखें। मैंने उस स्त्री की गवाही देखी जिसे शैतान की पत्नी कहते थे। परमेश्वर ने उसे नरक में 5 मिनट दिखाए और उसके बाद मैं कई रातें सो न सका। इसलिए नरक एक वास्तविक स्थान है और वहां वास्तविक पीड़ा है। इसलिए जैसा कि मैंने प्राकृतिक नियमों के साथ कहा, आज जब अपिंगटन जैसी जगहों पर गर्मी होती है, या अब भी जब मैं अमेरिका में हूं, तो आपकी कार या घर में एयर कंडीशनर हो सकता है। नरक में आप कुछ भी नहीं कर सकते और वह सदा सर्वदा के लिए होगा। और मैं आज आपको यह इसलिए नहीं कह रहा कि आपको डराऊं, बल्कि इसलिए कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, आपकी परवाह करता हूं और आपको नरक की वास्तविकता जानना जरूरी है। इसलिए ताकि जब आपके पास समय है, आप इसकी जांच कर सकें, परमेश्वर के पास जाकर अपना उद्धार सुनिश्चित कर सकें। यह परमेश्वर के क्रूर होने की बात नहीं है, यह परमेश्वर के न्यायप्रिय, पवित्र और धर्मी होने के बारे में है, जिसका आज प्रचार बहुत कम होता है। मेरे पिता ने मरते समय कहा था, हमें लोगों को नरक के बारे में और चेतावनी देनी चाहिए। उन्होंने स्वर्ग का भी बहुत प्रचार किया, और यह सिर्फ स्वर्ग नरक नहीं है। लोग इसे ऐसे देखते हैं जैसे सब काला सफेद हो। वे उस मुख्य कारण को भूल जाते हैं कि लोग सच्चे मसीही क्यों बनते हैं। नरक की वास्तविकता आपको सचेत करती है और फिर आप परमेश्वर और सत्य तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बार जब आप उन्हें पा लेते हैं, जब वे वास्तव में खुद को आप पर प्रकट करते हैं और आप पश्चाताप कर उन्हें अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, तो न केवल आपको अनंत जीवन मिलता है, बल्कि वे आपको एक नया सच्चा जीवन देते हैं। वे आपको बदल देते हैं, वे आपको एक नई आत्मा देते हैं, आपको एक नई सृष्टि बनाते हैं। तभी आप वास्तव में एक नया जीवन शुरू करते हैं, क्योंकि मसीह के बिना कोई जीवन नहीं है। एक ऐसा जीवन जिसमें सच्ची शांति और आनंद है, इस अस्थायी दुनिया में दर्द और पीड़ा के समय में भी। यदि आपके पास मसीह है, तो वे अलौकिक रूप से वह शांति, वह आनंद, वह सब कुछ जो आपको चाहिए, आप में उत्पन्न करते हैं, जब तक आप उन्हें पहले स्थान पर रखते हैं। और बहुत से लोग इसे चूक जाते हैं। अब आप इसलिए परमेश्वर की आज्ञा नरक के डर से नहीं, बल्कि प्रेम के कारण मानते हैं। आप बदल गए हैं, पाप से नफरत करते हैं और अब इसकी असलियत देखते हैं। इसीलिए हाँ, मैं इन चीजों के बारे में प्रचार करूंगा, क्योंकि यीशु ने स्वयं इसके बारे में प्रचार किया था। और आज बहुत से चर्च अब ऐसा नहीं करते हैं। बहुत से पादरी, वे केवल एक तरफा कहानी का प्रचार करते हैं। वे हर समय केवल परमेश्वर की दया और अनुग्रह की बात करते हैं। और भले ही हाँ, यह मूल्यवान और अद्भुत है, हाँ, लेकिन इसे हमेशा सच्चे न्याय के साथ संतुलित होना चाहिए। यहां तक कि निर्गमन 34 वाक्य 6 में भी लिखा है, यहोवा यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर, जो दोषी को किसी भी प्रकार निर्दोष नहीं ठहराएगा। क्या आप समझे? क्या आप देख पा रहे हैं? परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया, जो बहुत सुंदर है, हमेशा उसके न्याय और उसकी धार्मिकता के साथ चलती है। इस दुनिया में बहुत से लोगों को लगता है कि यह दुनिया निष्पक्ष नहीं है। अगर आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ बलात्कार होता है और आप अदालत जाते हैं, तो ये उचित नहीं लगता। कभी कभी जब मैं और अकीरा बॉडी कैम के ये एपिसोड देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि लोगों ने पुलिस या अन्य लोगों के साथ क्या किया, और हम सोचते हैं लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। अच्छा, हम जानते हैं कि यह मानव हृदय की बुराई के कारण है ना? और वे उस दुष्ट के प्रभाव में भी होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि सजा केवल 6-7 साल की होती है, जबकि उन्होंने दूसरे लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया होता है। और हमें लगता है यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसलिए आप देखिए, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, उनमें परमेश्वर की दया और अनुग्रह हमेशा उसके न्याय और धार्मिकता के साथ होते हैं। लेकिन आपको यह समझना होगा कि यह परमेश्वर जो अनंत है, उसके विरुद्ध किया गया पाप भी अनंत भार रखता है। इसलिए सुसमाचार इतना महत्वपूर्ण है,
क्योंकि यदि परमेश्वर वास्तव में धर्मी है तो वह अधर्म को दंड देगा। यदि वह पवित्र और न्यायप्रिय है तो उसे ऐसा करना ही होगा। और यहाँ एक बात है जिसे बहुत से लोग भूल जाते हैं। वे नहीं मानते, वे कहते हैं हम यीशु में विश्वास करते हैं क्योंकि वह क्रूस पर मरा। हाँ, लेकिन क्यों? वह क्रूस पर क्यों मरा? संडे स्कूल जाने वालों से पूछें तो वे कहेंगे हम मानते हैं यीशु हमारे पापों के लिए मरा। पर अच्छा, इसका क्या अर्थ है? अच्छा, मुझे नहीं पता। हम स्वर्ग जा सकते हैं, हाँ, लेकिन क्यों? मुझे नहीं पता। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह दंड जो आपको मिलना चाहिए था, यीशु ने उसे पहले ही क्रूस पर अपने ऊपर ले लिया। अंधकार के 3 घंटे सारा दंड, पाप के विरुद्ध परमेश्वर पिता का क्रोध यीशु पर पड़ा, आपकी वजह से, मेरी वजह से, दुनिया के सभी पापियों के लिए उसने इसे अपने ऊपर ले लिया, इसलिए हमें ना लेना पड़े। यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब यह यीशु का मकसद डराना नहीं है, न ही मेरा या अन्य मसीही भाई बहनों का। यदि आपने यह संदेश पहले सुना है जिनका उद्देश्य केवल डराना या अपना धर्म सही साबित करना है, नहीं, यह स्वयं जीवन का सत्य है। यह इसलिए है क्योंकि हम लोगों की परवाह करते हैं, क्योंकि हम लोगों से प्रेम करते हैं। यह वैसा ही है जैसे आप किसी परिवार को पार्क की ओर जाते हुए देखें, लेकिन आप अभी अभी वहां से आए हों, आपने वह सच्चाई देखी है। उस पार्क में उनमें आतंकवादी लोगों को मार रहे हैं, महिलाओं से बदसलूकी और कई जुल्म कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? अगर सच में उनकी परवाह है तो उन्हें चेतावनी देकर कहेंगे वहां मत जाओ। यदि आपको उनकी परवाह नहीं है तो आप नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं कहेंगे। नरक उससे कहीं अधिक बुरा है क्योंकि वह अनंत है। बेशक यदि आप उनसे प्रेम करते हैं तो आप उन्हें चेतावनी देंगे। इसीलिए यीशु ने हमें चेतावनी दी थी। उन्होंने स्वर्ग से अधिक नरक के बारे में बात की। इतना ही नहीं, उन्होंने कार्य भी किया। वे हमारे लिए क्रूस पर मरने आए, निर्दयतापूर्वक उन्होंने आपके लिए अपना जीवन दे दिया। आज मैं चाहता हूं कि आप इस चेतावनी को गंभीरता से लें क्योंकि आपका समय समाप्त हो रहा है। यीशु ने मरकुस 9:43 में यह भी कहा, और यदि तेरा हाथ तुझे पाप करने के लिए उकसाए तो उसे काट डाल। तेरे लिए उत्तम है कि अपंग होकर जीवन में प्रवेश करना बजाय इसके कि 2 हाथ होते हुए तू नरक की उस आग में जाए जो कभी नहीं बुझती। इसलिए क्या नरक अनंत है? मुझे इसलिए विश्वास है, बस पवित्र शास्त्र को जैसा लिखा गया है वैसे ही परख कर, यीशु ने जो कहा और प्रेरितों के वचनों को पढ़ा कर। लेकिन मेरा यह भी मानना है कि यीशु नहीं चाहते कि कोई भी वहां जाए। यही वे कहते हैं, यही उनका वचन कहता है। लेकिन आपको यह समझने की जरूरत है कि क्योंकि परमेश्वर धर्मी हैं, वे स्वतंत्र इच्छा की अनुमति भी देंगे। वे परमेश्वर हम सभी को और स्वयं आपको भी शाश्वत अनंत जीवन, दिव्य ज्योति या फिर घोर अनंत अंधकार, मृत्यु और अनंत नरक को चुनने की पूर्ण अनुमति और अवसर प्रदान करते हैं। यूहन्ना 3:19, और न्याय का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने ज्योति के बजाय अंधकार से अधिक प्रेम किया क्योंकि उनके कार्य बुरे थे। बात यहां आकर रुकती है। आप अनंत जीवन या अनंत मृत्यु को चुनते हैं। मैंने अपना निर्णय पहले ही ले लिया है, और भले ही नरक केवल अस्थायी होता और मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाता, फिर भी मेरा निर्णय वही रहता। मैं यीशु मसीह को चुनूंगा। असली कारण कि लोग यीशु मसीह को क्यों नहीं चुनना चाहते वह यह है कि वे अपनी पापपूर्ण इच्छाओं में जीना जारी रखना चाहते हैं, और वे ये तमाम बहाने लेकर आते हैं। वे चोरी, ईर्ष्या, रिश्वतखोरी, गपशप, विवाह से पहले यौन संबंध, बलात्कार, हत्या करना, अंधकार में जीना और नशे में धुत रहना जारी रखना चाहते हैं। और फिर यदि आप ज्योति के बजाय उसे चुनाव करते हैं तो आप हमेशा के लिए वहीं जाएंगे। अंधकार, जब तक कि आप सच्चे मन से पश्चाताप न करें और यह स्वीकार न करें कि यीशु ने क्रूस पर आपके लिए वह दंड सहा था, और आप उन्हें खुद को एक नई सृष्टि बनाने दें जो अच्छाई से प्रेम करती है और बुराई से घृणा करती है। बहुत से लोग इस तथ्य को भूल जाते हैं कि जब वे अंधकार में जीना जारी रखते हैं, इसीलिए वे दुनिया में बहुत अधिक दर्द और पीड़ा का कारण बनते हैं। अक्सर ये वही लोग हैं जो पूछते हैं दुनिया बुरी क्यों है, परमेश्वर ऐसा क्यों होने देते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लोग पाप कर रहे हैं जो दुनिया में दर्द और पीड़ा का कारण बन रहा है। परमेश्वर नहीं, वे स्वतंत्र चुनाव की अनुमति देते हैं, और यही वह चुनाव है जो मनुष्य करते हैं। यही वह चुनाव है जो आप करते हैं। मैं भी यही किया करता था। मेरा पहला भाई मारा गया था, दूसरा कार दुर्घटना में, और फिर जब मैं आया और मैं उसके मृत शरीर के पास बैठा और मैंने देखा कि मैं अपने लिए जीवन जीकर कितना मूर्ख था कि मैं इन तमाम पापों के साथ इसे बर्बाद कर रहा था। और ऐसा लगा मानो स्वर्ग से परमेश्वर ने मेरे अंतर्मन से कहा, डैनियल, यदि तुम आज मर जाओ तो तुम कहां जाओगे? और मुझे पता था, नरक।
मैं अब उस सच्चाई से और नहीं भाग सकता था। और अगर परमेश्वर आज आपसे बात कर रहे हैं और अगर आप उन्हें अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं तो आज ही करें। यहाँ यह वीडियो देखें, मैं कदम दर कदम आपकी मदद करूंगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि स्वर्ग और नरक वास्तव में कैसे होंगे तो आप उसे यहाँ मेरे चैनल पर भी देख सकते हैं। और कभी ना भूलें, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। अलविदा।